السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیو، راہی انفارمیٹی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی کلاس آپ سبھی ساتھیوں کے اکارڈنگ ٹو سلیبس یعنی آپ کے نصاب کے مطابق بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ ساتھیوں ہم ڈیلی 22 جو ہے کہ کلاسز رات کے کتنے بجے 9 بجے ہم ڈیلی رات کے لائیو کلاسز لے رہے ہیں، اور ساتھیوں یہ کلاس یوزفل ہے آپ سبھی اردو امتحان دینے والے ساتھیوں سے۔ آپ تلنگانہ اسٹیٹ کے اگر آپ جونیئر لیکچر کی تیاری کر رہے ہیں، یہ کلاس آپ کے لیے مفید ہے۔ ٹی جی ٹی پی جی ٹی لیول میں کسی بھی ایگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ ایس ایس بی کی یا پھر یو سی جی نیٹ کی جو آپ تیاری کرنے والے ہیں تو پھر یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا، اتنا فائدہ کہ کامیابی آپ کی مقدر ہوگی اور کامیاب آپ ہی ہوں گے، کیونکہ تیاری آپ کریں گے تو سوال کے جواب بھی آپ ہی لکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگست کے اندر جولائی اگست میں مانو بی ایڈ انٹرنس کا ایگزام ہوتا ہے، مانو میں بی ایڈ ریگولر موڈ پہ کرنے کے لیے، تو اس امتحان کی تیاری کے لیے جو ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ کلاس آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ آئیے، آپ کا آل اوور انڈیا میں کہیں سے بھی آپ کے تعلق ہو، آپ جو ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد ساتھیوں ایک اچھے اردو سے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں، اردو کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور اردو کی اہمیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ چلیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے نئے مہمان ہیں تو یاد رکھیے گا رات کے 9 بجے لائیو کلاس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو نوٹس چاہیے ساتھیوں تو پھر آپ کو یہ نمبر 9045978747 پر رابطہ کر کے آپ نوٹس وغیرہ لے کر کے تیاری کر سکتے ہیں، ہمارا آفیشیل ممبر بن کر کے جو ہے کہ آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھیوں وہی بات وہی لائن، اگر آپ آ گئے ہیں، آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے ساتھیوں وہ آپ کا لائک کا بنتا ہے، دوسرا کام جو ہے ساتھیوں وہ آپ کا شیئر کا بنتا ہے، تیسرا کام اگر آپ جو ہے کہ ابھی تک ہمارا سبسکرائبر نہیں ہے، نئے ممبر ہے، تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو لائک شیئر تو یہ آپ کا بنیادی حق بنتا ہے، یہ آپ لائک شیئر کر کے بھی دوسرے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں اور ہماری انرجی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ اب تک ہمارا ساتھیوں 32 کلاس ہے تھیوری بیس میں، موک ٹیسٹ کو چھوڑ کر اور پی وائی کی جو میں نے کروایا ہے اس کو چھوڑ کر تھیوری بیس میں یہ ہمارا 32ویں کلاس ہے۔ آپ ان سبھی کلاس کو پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ساتھیوں، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے جڑنا شروع کر دیا ہے، آپ کے کچھ ساتھی آ چکے ہیں اور کچھ آنے والے ہیں، بس وہی چیز وہی بات کہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ساتھیوں ہم پڑھیں گے آج علی سردار جعفری، اور ہم اگلا جو پڑھیں گے ٹاپک، جو ہماری اگلی ٹاپک ہوگی وہ ہے نون میم راشد۔ تو علی سردار جعفری کی پوری ہم تھیوری پڑھیں گے، پھر اس کا نچوڑ نکالیں گے، اسی طرح نون میم راشد کا بھی۔ تو بات کر لیتے ہیں اس کا نام کا۔ تو سب سے پہلے جو اصل پوچھا جاتا ہے سوالات میں، اصلی نام، صحیح نام، پیور نام، شدھ نیم، تو اس کے بارے میں جو اس کا اصل نام ہے علی سردار جعفری۔ اصل نام کیا ہے؟ علی سردار جعفری، لیکن کتابوں میں آپ کے آپشن میں علی نہیں ہوتا ہے، صرف سردار جعفری ہوتا ہے، اور بعض جگہ آپشن میں سردار بھی نہیں ہوتا، صرف جعفری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ پوری نام علی سردار جعفری، اور شارٹ نیم میں اگر دیکھا جائے تو جعفری، اور منیمم شارٹ نیم میں اگر دیکھا جائے تو سردار جعفری۔ یہ سبھی چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ آئیے
सरदार जाफरी यकुम मुहर्रमुल हराम, यकुम बोले तो एक, यकुम मतलब एक फारसी लफ्ज है, यकुम मुहर्रमुल हराम 1333 हिजरी मुताबिक 29 नवंबर 1913 को बलरामपुर में पैदा हुए। तो बलरामपुर कहाँ है साथियों? यूपी में। बलरामपुर कहाँ है? यूपी में। क्या है? बलरामपुर। तो असल नाम अली सरदार जाफरी। पैदा कब हुए हैं? तो 1913 में। कहां पैदा हुए हैं? तो बलरामपुर में। बलरामपुर कहां है? तो यूपी में है। हिजरी पूछा जाए तो 1 मुहर्रमुल हराम 1333 हिजरी। अगली बात कर लेते हैं जो पूछा जाता है वफात। जाफरी का इंतकाल यानी अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ था? तो 2000 सन 2000 में 2000 में यानी सन 2000 में इनका वफात हो चुका था, इंतकाल हो चुके थे। लेकिन एक सवाल यह भी आता है इसका इंतकाल कहां हुआ है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सरदार जाफरी के वालिद का नाम सैयद जाफर तैयार था और दादा का नाम सैयद मीर हसन था। क्या समझ में आई बात? सरदार जाफरी यानी अली सरदार जाफरी के वालिद का नाम, फादर नेम सैयद जाफर तैयार था और दादा का नाम सैयद मेहदी हसन। और सरदार जाफरी के जो वालिदा है उनका नाम जाहिदा खातून जाफरी था। जाफर चूंकि इनके वालिद का नाम है तो फिर यहां से सब जाफरी हो गए। परदादा को छोड़कर दादा से नीचे जितने भी लोग आए हैं सब अपने दादा के निस्बत से अली सरदार हैं तो आखिर में जाफर हो गए। बीवी माँ का नाम जाहिदा खातून है, आखिर में जाफरी हो गई। तो इस तरीके से जो भाई होंगे वो भी जाफरी। तो सरदार जाफरी की 7 बहनें और 1 भाई थे। कितने भाई थे? एक ही भाई थे, 7 बहनें थी। सरदार जाफरी 1933 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। 1913 में पैदा होते हैं। कब पैदा हो रहे हैं ये? 1913 में। अब देखिएगा कमाल की बात है कि नहीं है, यहां देखते हैं। 1913 में पैदा हो रहा है, ठीक है। और ये 1933 में क्या करते हैं? मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं। 13, 10, 23 और 10, 33 20 साल की उम्र में जो है कि ये मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं। आगे देखते हैं। जाफरी 1938 में अरबिक एंग्लो अरबिक कॉलेज से बीए किया है। जाफरी ने 1992 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर का मनसब कबूल किया था। विजिटिंग प्रोफेसर मनसब का ओहदा कबूल किया था इन्होंने। यहां तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं, वरना आप कमेंट से कर सकते हैं। कुछ अगर पूछना हो, बात समझ में नहीं आई तो लाइव आप पूछ सकते हैं, वरना आपके लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वगैरह सब चीजें तैयार है। मैं देख रहा हूं फिलहाल आप बहुत खामोश है ना? क्या बात है। चलिए, एक तो आपकी तादाद, ऊपर से आपकी खामोशी बहुत हो रही है। दिल आजारी किससे बयां करें, कौन सुने, कौन करे हमारी इस परेशानी की दूरी। सरदार जाफरी को 6-7 साल की उम्र में 500 अशार ज़बानी याद थे। ये बहुत अहम बात है, ठीक है। वो कौन से अशार हैं जिसको बचपने में 6 साल की उम्र में 500 अशार ज़बानी याद थे? तो सरदार जाफरी ने 15-16 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिए थे। ये आम सी बात है तमाम शोरा के नाम में। चलिए अब बात कर लेते हैं। सरदार जाफरी ने 15 साल की उम्र में पहला मरसिया कहा था। आमतौर पर जितने भी शोरा के नाम आपने पढ़ी है वो आमतौर पर स्टार्टिंग किससे करते हैं? गजल से। वो स्टार्टिंग आमतौर पर गजल से ही करते हैं और उनकी 15 साल, 11 साल, 9 साल की उम्र में वो गजल कहना शुरू कर देते हैं। ये सरदार जाफरी है जो 15 साल की उम्र में मरसिया कहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और क्या कहते हैं मरसिया के बारे में कि कलिमा और तकबीर के बाद मेरे कानों में पहली आवाज अनीस की सुनी। और अनीस कौन है? अनीस मरसिया कहने वाले शायर हैं। तो सरदार जाफरी ने 15 साल की उम्र में मरसिया कहा था और वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे कान में कलमा, जो मेरा कान है इसमें जो आवाज सबसे पहली गूंजी वो कलीमे की और तकबीर की, और उसके बाद फिर कोई आवाज पहुंची है तो मीर अनीस की आवाज पहुंची। और अनीस कौन है? ये मरसिया कहने वाले शायर के नाम है।
تو जाफर ज़माने तालिब इल्मी से ही तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थे, कुछ अरसा तहरीक की सूबाई साहब के सेक्रेटरी भी रहे हैं। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे आप, सूबाई मनसब के, सूबाई साहब लिखा हुआ, सूबाई मनसब के सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो जाफर ज़माना तालिब इल्मी से ही तरक्की पसंद तहरीक, तो तरक्की पसंद तहरीक आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बने रहें इस चैनल पर, हम इसको भी पढ़ेंगे और इसका भी निचोड़ और गाढ़ा बना करके आपको पिलाएंगे। फिर जो है कि कोई सा भी वायरस आपको इससे दूर नहीं कर सकता। तो तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थे और कुछ अरसा तक तहरीक, इस तहरीक के सूबाई मनसब के सेक्रेटरी रहे हैं। जाफरी का शुमार उर्दू का बुलंद पाया मुकर्रिरों में होता है, तकरीर करने वालों में शुमार होता था। किसका? जाफर अली सरदार जाफरी का शुमार बुलंद पाया, उर्दू के बुलंद पाया मुकर्रिरों में, तकरीर करने वालों में शुमार होता है। जाफरी ने नया अदब का पहला शुमारा 1939 में शाये किया था। ये भी थोड़ा सा आप इसको नोट से लेकर के पढ़ के अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेंगे। जाफरी ने नया अदब का पहला शुमारा 1939 में शाये किया था। अब देखेंगे, जाफरी ने बंबई से माही, ठीक है, गुफ्तगू का अजरा 1967 में किया था। बस आपको ये से माही मुजल्ला गुफ्तगू का अजरा जो है कि 1967 में किया था, ये आप याद रखेंगे। जाफरी ने हल्का-ए-यारा के नाम से एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई थी। आई बात समझ, फिल्म लिखने वाले शोरा आपको कई सारे मिल जाएंगे, कई सारे शोरा किराम ऐसा जिन्होंने फिल्मों में काम किया। किसी ने कहानी लिखी, किसी ने अशार लिखे, किसी ने स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत कुछ किए हैं लोगों ने। और इनमें से एक इनका भी नाम है अली सरदार जाफरी ने हल्का-ए-यारा के नाम से एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई थी। जाफरी ने गालिब की मसनवी चरागे देर का तर्जुमा सोमनाथ ख्याल के नाम से किया था। जब हमने आपको गालिब पढ़ाया था तो गालिब की मसनवी के बारे में भी बात हुई थी। तो गालिब की मसनवी क्या बताया था? चरागे देर, ये क्या है? मसनवी है। और किसकी मसनवी है? तो ये गालिब की मसनवी है। ये वही गालिब है जो पैदा आगरा में होते हैं, बस्ते दिल्ली में है और सफर कलकत्ता का करते हैं, पेंशन के लिए 2 बार जेल भी जाते हैं। ठीक है, और ये जुआरी और शराबी भी होते हैं। तो जाफरी ने गालिब की मसनवी चरागे देर का तर्जुमा सोमनाथ के ख्याल से किया था। क्या है? सोमनाथ के ख्याल, सोमनाथ ख्याल के नाम से। ये तो हो गई साथियों सरसरी तारीफ। अब सरसरी तौर पे नजम फेर लेते हैं, एक नजर कर लेते हैं किसको, यानी कि अली सरदार जाफरी को जो इनामात दिए गए हैं, जो इजाजात दिया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी गौर व फिक्र कर लेते हैं, थोड़े से अपने दिमाग पे जोर डालते हैं। सरदार जाफरी को पद्मश्री से 1967 में नवाजा गया। कब? पद्मश्री, ये भारत सरकार की तरफ से एक अवार्ड है। ये पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 1967 में। किसको? तो अली सरदार जाफरी को। इसी तरीके से क्या बोले, चलिए अच्छी बात। सरदार जाफरी को जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 1969 को मिली थी एक अवार्ड, और 2 अवार्ड आपके सामने आ गया, फेलोशिप भी है और पद्मश्री भी है। इसी तरीके से अली सरदार जाफरी को एक ख्वाब और एक नज़मी मजमुआ है, एक ख्वाब और, इस पर श्वेत लैंड नेहरू अवार्ड 1960 में मिला था। तो कितने अवार्ड हो गए? 3। एक वो देखिएगा 1967 है, 69 है, फिर 60 है। तो पता चला कि पहला अवार्ड इनको 60 में ही मिला है। उसके बाद देखेंगे तो फिर जो है कि पद्मश्री है, फिर देखेंगे तो फेलोशिप अवार्ड है, उसके बाद जो है कि ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो सरदार जाफरी को इकबाल सम्मान से भी नवाजा गया था। कब? ये मेंशन नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। अली सरदार जाफरी को नई दुनिया को सलाम
एक मजमुआ कलाम है नई दुनिया को सलाम। अली सरदार जाफरी का नजमी मजमुआ क्या है? नई दुनिया को सलाम। इस पर जो है कि ज्ञानपीठ अवार्ड 1970 में मिला है। किसको? अली सरदार जाफरी को। तो पहला अवार्ड 1960, दूसरा 67, तीसरा 69 और चौथा क्या है? 70। तो ये बात क्लियर है। अब सरदार जाफरी को इकबाल सम्मान से भी नवाजा गया है, ये चीजें मेंशन नहीं है, पूछी भी नहीं जाती। अब अली सरदार के जो कारनामे हैं थोड़ा सा इस पे गौर करें, क्योंकि सवाल यहीं से बन करके आते हैं और ये चीजें आपको रटनी नहीं है, याद भी नहीं करनी है, लेकिन हाँ आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए, दिमाग में बिठा लेनी है। कुछ बातें आपको सुनने से आपके दिमाग में बैठ सकती है, और जब ये नोट्स आपको मिल जाएगा तो नोट से पढ़ने से भी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इनका आसान सा तरीका है कि मैं वही बात कहने लगा हूं जिसका आप लोग इंतजार करते हैं शायद कि मैं कहूं फिर आप लाइक करें, मैं कहूं फिर जो है कि किसी की कलम या हाथ को हरकत हो और वो शेयर करें। यहां तक कि ये लाइक तो आप बहुत सारे साथी कर देते हैं, अच्छी बात है। शेयर करने में आप लोगों को लगता है कि कुछ पैसे का प्रॉब्लम है जो आप लोग शेयर नहीं करते, क्या तो है जिसकी वजह से आप लोग शेयर करने में कंजूसी से काम ले रहे हैं। खैर ये आप सभी का अपना मन भेद हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो फिर नोट्स के लिए आपको 90459787 और साथियों 47 इस नंबर पे आप राब्ता करके नोट्स वगैरह ले सकते हैं। आइए हमारी डायलॉग बाजी हो गई खत्म, आइए शुरू करते हैं फिर क्लास। तो हम बात कर लेते हैं शेरी मजमुए। अली सरदार जाफरी के शेरी मजमुए कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे जो है कि और भी चीजों के बारे में गौर व फिक्र हम करेंगे। सबसे पहला जो शेरी मजमुआ है वो है साथियों परवाज। ये पहला शेरी मजमुआ है, ठीक है। ये साथियों 1944 में इशाअत हुई है। नई दुनिया को सलाम ये साथियों दूसरा शेरी मजमुआ है, ये 1948 को शाये हुई है। एक साथियों खून की लकीर ये तीसरा शेरी मजमुआ, कितना? तीसरा। 1 2 3 नंबर से भी दे रखा हमने और आप भी याद रखेंगे। पहला परवाज, दूसरी नई दुनिया को सलाम और तीसरा खून की लकीर। ये तीनों पहला, दूसरा, तीसरा मजमुआ है। और एक जो है साथियों 1944 को शाये होता है, दूसरा जो है कि 1948 को और चौथा जो है कि 1949 को शाये होता है। इसी तरीके साथियों अमन का सितारा एक मजमुआ कलाम है, शेरी मजमुआ है। इसमें साथियों 1950 में ये शाये होती है। एशिया जाग उठा 1951 में ये शाये होती है। एशिया जाग उठा ये भी शेरी नजमी मजमुआ कलाम है। इसी तरह साथियों एक है पत्थर की दीवार, या आप नाम से समझ गए होंगे इसका नाम पत्थर की दीवार क्यों पड़ी है, क्योंकि साथियों जेल में लिखी गई नज़मों का मजमुआ है। अब जेल में सिवाय दीवार का कोई साथी तो इंसानों को होता नहीं, तो पत्थर की दीवार तो जेल में लिखी गई नज़मों का जो मजमुआ है जो है कि शाये होती है 1953 में, उसका नाम क्या है? पत्थर की दीवार। एक ख्वाब और ये भी मजमुआ कलाम है, नज़मी है और ये साथियों 1964 में शाये होती है और इस पर भी इनको अवार्ड दिया जाता है, जो अवार्ड हमने आपको पहले बता दिया है। चलिए अब कुछ और है यहाँ पर, जैसे कि ये साथियों पेराहन शरर ये साथियों 1965 में शाये होती है। लहू फुकारता है ये आखिरी मजमुआ कलाम है। क्या ये आखिरी है? लहू फुकारता है आखिरी है। परवाज ये पहला है, तो पहला और आखिर याद रखेंगे, ये चीजें जल्दी पूछी जाती है। तो पहला कब शाये हुआ था ये मैंने 1900 बता दिया था, कब? 44 में शाये हुआ है। और साथियों लहू फुकारता ये 1968 में शाये हुआ है। तो यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या बताने की कोशिश जहमत जरूर करें, यूं खामोशी अच्छी नहीं होती। चलिए तरानाए जमहूर एक मजमुआ का नाम है नज़मी, जो साथियों 1978 में ये चीज शाये हुई है और ये सोवियत यूनियन के नज़मों का इसमें इंतखाब है।
एक और है मजमुआ नई दुनिया को सलाम, इसमें भी इनको अवार्ड मिला है। शामिल मसनवी जमहूरी, ये भी एक सियासी नज़म है, मसनवी जमहूरी, जो नई दुनिया को सलाम में शामिल है। तो यहां तक पूरी बातें समझ में आ गई आप लोगों के कि क्या क्या है और कैसे कैसे हैं, ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, वो क्या था? वो साथियों नज़मी तसानीफ था। वो क्या था? नज़मी तसानीफ था। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो नसरी तसानीफ पढ़ेंगे। नसरी तसानीफ पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। नज़मी यानी कि जो शेर के तरह, शेर के लहजे में लाइन बाय लाइन जो लिखा जाती है कि अंदाजे शेर में लिखी जाती है उसे मसनवी कहते हैं, और जो आमतौर पर लिखी जाती है उसे नसरी कहते हैं। जिस तरीके से मैंने ये PDF बनाया है, आप पढ़ रहे हैं, ये नसरी हुआ, और जो नज़म है वो नज़म के तौर पर लिखा जाता है वो नज़मी होती है। चलिए, तो सरदार जाफरी की नसरी तसानीफ, एक तसानीफ है मंजिल, अफसानी मजमुआ 1938 में, यह पहली तसनीफ है। अब 3 मुख्तसर ड्रामे हैं। उन्नीस 1942 में शाये होती है। ये किसका खून है? ये भी ड्रामा है 1943 में। और साथियों ये है पेकार, ये है 1944 में। तरक्की पसंद अदब 1951 में। लखनऊ की 5 रातें 1965 में। इकबाल शनासी 1969 में। और साथियों पैगंबराने सुखन 1970 में। तरक्की पसंद तहरीक की निस्फे सदी, ये 1987 में। और सरमाए सुखन ये 2000 में शाये हुई है। इनमें से ये वाली कहाँ गया? इकबाल शनासी। इस वाले सवाल को कई बार पूछा जा चुका है, PYQ भी आपने इसको देखा होगा, इसीलिए ये सब किताबों को आप याद रखेंगे, कौन सी किताब किसकी है और किसने लिखी है, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप सही जवाब दे सके। ठीक है, अब साथियों अली सरदार जाफरी की नज़में, तो ये बहुत सारी नज़में हैं। ये आपको जब नोट्स दिया जाएगा तो आप इस नोट्स में पढ़ लेंगे, तभी आपको फायदा होगा। अब पढ़ लेते साथियों हम नून मीम राशिद को। नून मीम राशिद के बारे में शुरू करूं उससे पहले फिर वही चीज साथियों, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अभी तक तादाद आपकी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। नून मीम राशिद, नाम असल क्या है? नजर मोहम्मद राशिद। असल नाम क्या है इसका? नजर मोहम्मद राशिद, ये इनका असल नाम है। और कलमी नाम की बात करेंगे तो नून मीम राशिद इसका कलमी नाम है। तखल्लुस इनका गुलाब था, जो गुलाब से जाना नहीं जाता, नून मीम राशिद से ही जाने जाते हैं। तो कलमी नाम नून मीम राशिद, तखल्लुस इनका गुलाब हो गया, असल नाम नजर मोहम्मद राशिद है। मालूम था आपको इतनी सारी बातें? नहीं, तो अच्छी बात है, मालूम हो गया। अगर मालूम था तो ये और अच्छी बात है कि आपकी और भी पक्की हो जाएगी। नजर मोहम्मद राशिद 9 नवंबर 1910 में गोजरा नवाला पंजाब में पैदा हुए, जो कि आज पड़ोसी मुल्क में है। नजर मोहम्मद राशिद का इंतकाल 9 अक्टूबर 1975 में लंदन में हुआ। पैदा पंजाब में हो रहे हैं, वफात लंदन में हो रहा है। पैदा कब हुए? 1910 में। वफात कब हुए? 1975 में। याद रहेगा आपको ये सारी बातें। राशिद ने 1926 में मैट्रिक, 1928 में, अच्छा राशिद 1926 में मैट्रिक किए हैं, 1928 में इंटरमीडिएट, और 1930 में BA का, और 1932 में MA का इम्तिहान पास किया है। तो बात समझ में आई नहीं आई? कहने का मकसद यह है कि 1926 में बंदा मैट्रिक करते हैं, 1928 में इंटरमीडिएट करते हैं, 1930 में बंदा BA पास करता है, और 1932 में ये MA करते हैं। ठीक है, चलिए। राशिद ने कम उम्री ही में शायरी शुरू कर दी थी और गुलाब तखल्लुस इख्तियार किया था। ये जो हर शायरी की बात हो, हर शायर की यही कहानी है। राशिद को लोगों ने इनफिरादियत परस्त, गैर समाजी, जिन्स ज़दा, जहनी मरीज, फरारी शिकस्त,
खुर्द-ए ज़हनियत का मालिक कहा है। कितने सारे अलकाबात हैं, और ये वो चीजें हैं जो क्या कहते हैं, लोग तनकीदी नजरिए से सोचते हैं तो फिर इस तरीके से अलकाब दिए जाते हैं। यानी कि लोगों ने कहा है कि ये इनफरादियत परस्त हैं, गैर समाजी भी हैं, जिनसे ज़दा भी हैं, जहनी मरीज और फरारी शिकस्त और खुर्दा जहनियत का मालिक कहा है। चलिए, लोगों ने कहा है राशिद की शायरी पर उरियानी और फुहाशी का इल्जाम भी लगाया जाता है। राशिद की शायरी पर इल्जाम कौन सा लगता है, तो फुहाशी की, और कौन सी, तो उरियानी की, यानी कि बेहयाई का इल्जाम लगता है। रिसाला शेरो हिकमत, एक रिसाला है नून मीम राशिद का जिसका नाम क्या है, शेरो हिकमत। हैदराबाद दक्कन ने 1971 में नून मीम राशिद नंबर निकाला था। कोई बात नहीं, नून मीम राशिद ने अपने कलाम में फारसी अल्फाज और तराकीब का ज्यादा इस्तेमाल किया है, कुछ खास बातें यहां नहीं है। आइए अब इनके कारनामे देख लेते हैं, नून मीम राशिद के कारनामे। पहले हम इनके शेरी मजमूए को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इनके कुछ नज़मी कुछ नसरी चीजों को भी पढ़ लेते हैं। पहले हम शेरी मजमूए को पढ़ लेते हैं। मावरा, क्या करते साथियों, मावरा, ये एक मजमुआ कलाम है मावरा, जो साथियों 1941 यानी 1941 में ये शाये होती है। ये उर्दू नज़्मों का पहला मजमुआ है जिसका नाम मावरा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते साथियों दूसरी मजमुए की, ईरान में अजनबी। ये नून मीम राशिद की दूसरी मजमुआ कलाम है जो 1955 में शाये होती है, और साथ ही मंजूमात का दूसरा मजमुआ है। ये क्या है, मंजूमात का दूसरा मजमुआ है। ऊपर नजमों का मजमुआ था और ये मंजूमात का मजमुआ है, ये वही चीजें हैं। ठीक है, चलिए ला इंसान, ये क्या है, ला इंसान 1969 में मंजूमात का तीसरा मजमुआ शाये होता है। और ये वाली ला इंसान साथियों PYQ आप देखिएगा वहां पर ये चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो कुछ सवाल पूछे जाते हैं इसीलिए वो रिपीट भी होता है, जो रिपीट होता है वही खास हो जाता है, इसीलिए इन चीजों को आप याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और साथियों, गुमान का मुमकिन 1977 को ये चीज तसनीफ होती है। ये मंजूमात का चौथा मजमुआ है और इसका लिखने वाला वही है नून मीम राशिद। ठीक है, चलिए अब नून मीम राशिद के साथियों दीगर और तसानीफ हैं और तर्जुमे हैं जो उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। यानी कुछ तसनीफ है जिनको उन्होंने तसनीफ किया लिखा है, और कुछ तराजिम है जो बाहर देश की किसी की किताब है उसको इंग्लिश में थी, फारसी में थी, उसको उर्दू में किया है, तो ये तराजिम हो जाते हैं। कुछ तसनीफ है जिन्होंने उनको लिखा है अलग से। तो फ्रांसीसी अदब ये आप याद रखेंगे। अब क्या है फ्रांसीसी अदब के अंदर में जदीद फारसी शायरी, जदीद फारसी शायरी ये क्या है, ये एक लेक्चर है जो साथियों 1969 में पाकिस्तान काउंसिल लाहौर में दिया था। कौन, नून मीम राशिद। एक साथियों यामा, ये साथियों 1939 को तसनीफ होती है, शाये होती है। और अलेक्जेंडर कोरन के रूसी, ये कोरन नहीं, कुरन ये वाव नहीं है, ये इस तरीके से मिला हुआ। ठीक है, इस तरीके से अलेक्जेंडर कुरन है। ठीक है, रूसी जबान के नाविल का उर्दू तर्जुमा जिसका नाम था यामा, जो 1939 को शाये हुई। अम्मी मैं तुम्हारी ही हूं या अम्मी मैं तुम्हारी हूं, यह कब शाये होती है, कब तसनीफ की जाती है, 1956 में। आपके लिए, हम सभी के लिए खास क्या है, ये नाम और खास है इसकी सने तसनीफ, और कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जो दिया है कभी कभी चीजें खास हो जाती है कि ये क्या है, तो विलियम सिरोयान के नाविल जिसमें जो नाम था उसका नाविल का ममा आई लव यू, ये क्या था, एक नाविल का नाम था। लिखने वाला विलियम सिरोयान के नाविल हैं,
اس کا اردو ترجمہ کیا ہے کہ امی میں تمہاری ہوں، اور کرنے والا کون ہے؟ نون میم راشد۔ اسی طرح ساتھیوں وقت کا آسمان، علم الانسان سے متعلق لورین ایزلے کی کتاب کیا ہے؟ فائر مین آف ٹائم کا اردو ترجمہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وقت کا آسمان کیا ہے؟ یعنی علم الانسان سے متعلق لورین ایزلے، آپ کو معلوم ہوگا اسی ایزلے کی کتاب فائر مین آف ٹائم ہے، اس کا اردو ترجمہ کون کیا ہے؟ نون میم راشد نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہاں تک آپ سبھی نے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی بات کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیجئے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھئے، کوئی خلش کوئی بات ہے۔ یہ علی سردار جعفری کی جتنی بھی نظمیں ہیں یہ آپ سبھی ساتھی یہاں پڑھنا آپ کو مشکل ہے، کلاس لمبی ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو بس دھیان میں بٹھانی ہے کون سی کتاب کس کی ہے کس کی نہیں۔ تو میں نے سبھی کو مینشن کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم نے کل پڑھایا تھا آپ کو اس میں بھی سبھی چیزیں ہم نے مینشن کر دیا ہے، چک بست کا بھی اور اختر الایمان کا بھی۔ تو آئی ہوپ کہ مجھے لگتا ہے آپ اس کو پڑھے ہوں گے، کیونکہ ساتھیوں ہم تیاری کی پوری ذمہ داری آپ سے لیتے ہیں، لیکن جب تیاری آپ میرے طریقے پہ کریں گے، نوٹس سے بھی کریں گے اور ریگولر کلاس سے بھی کریں گے، لیکن ہمارا اور ہم سست اور آلسی اتنے ہیں، جو کلاس کرتے ہیں وہ نوٹ سے نہیں، جو نوٹ سے لیتے ہیں وہ کلاس نہیں کرتے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت بھی آپ کو تھپیرے مار کے الگ کر دیتے ہیں، جس کو آپ کو پاس ہونا ہوتا ہے آپ پاس نہیں ہوتے، پھر کوئی اور پاس ہو کر کے جاب کر لیتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بھی سنجیدگی سے کام لینا ہے، تبھی آپ آگے بڑھیں گے۔ اب ساتھیوں ماورا ایک نظمی مجموعہ ہے، کس کا؟ یہ کس کا ہے بولیے نا؟ نون میم راشد کا۔ اس میں شامل نظم ہے، اب اس میں بہت ساری نظم شامل کیا گیا ہے، یہ یاد رکھیں گے، پوچھا جاتا ہے میں اسے واقف الفت نہ کروں۔ اسی طرح رخصت، انسان، خواب کی بستی، گناہ اور محبت، ایک دن، لارنس باغ میں، ستارے، میری محبت جمع رہے گی، بادل، فطرت اور عہد نو کا انسان، مکافات، شاعر کا ماضی، خواب آوارہ، زندگی جوانی، حسن رفعت، دل سوز، رعات پرواز، وادی حسینہ، طلسم جاوداں، ہوٹوں کالم سے اتفاق، حسن انسان۔ اس میں جو ہے کہ افلاطونی عشق پر طنز کیا گیا حسن انسان میں، اور ایک رات، سیاہی، زوال، اظہار، یہ سبھی چیزیں بتائیے نا لائف میں کتنا فکار ہو آپ کو، یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ جب تک آپ اس کو نوٹ سے نہیں لیں گے، تھوڑا دھیان سے اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، تو کیسے یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ سکتا ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ جو ہے کہ آئنسٹائن کے نسل سے ہوں، آپ دیکھتے ہی پڑھ لیں، لیکن پھر بھی دنیا تو یہی کہے گی، آنکھوں کے جال، گناہ، عہد وفا، شاعر درماندہ، دریچے کے قریب، رقص، بے قرارات کے سناٹے میں، شرابی، انتخاب، اجنبی عورت، خودکشی۔ یہ کتنا ہے؟ یہ جتنے بھی میں نے اشعار پڑھے ہیں، یعنی یہ سب کیا ہے؟ نظم کا عنوان ہے، اور یہ سب جو شامل ہیں ماورا ایک مجموعی کلام ہے، اس میں یہ سب نظم شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایران میں اجنبی، جو آپ نے مجموعہ کلام میں بھی آپ نے پڑھا نون میم راشد کا، ہے نا، ایران میں اجنبی، اس کے اندر بھی بہت سارے اشعار ہیں، بہت سارے مجموعہ کلام میں بہت سارے عنوانات سے نظم پیش کیا گیا ہے، جیسے شباب گریزاں، ہیلا ساز، کشاکش، خراب، پہلی کرن، سرگوشیاں، رقص کی رات، آواز، دوری، زنجیر، سومناتھ، ویران کشیدگاہیں، نمرود کی خدائی، ایک شہر، انقلابی، سوگات، ظلم رنگ، طلسم ازل، صبا ویران، سایہ، کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم، خود سے ہم دور نکل آئے ہیں، زندگی میری سہے نیم، حرف نہ گفتہ، اور ساتھیوں یہ دروازہ کیسے کھلا۔ اتنے سارے عنوانات سے نظم وہاں موجود ہیں، کسی ایک عنوان سے آپ کو اٹھا کر پوچھ لیں گے اس عنوان سے نظم اس کی کتاب میں کہاں پر کس مجموعہ کلام میں ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ معلوم تو ہونی چاہیے نا آپ کو۔ میں رٹنے تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پڑھنے ضرور کہہ رہا ہوں۔ منا سلوا، میزبان، نارسائی، کیمیاگر، ہما اوست، مارے سیاہ، دست ستمگر، درویش، خلوت میں جلوت، تیل کے سوداگر، وزیر چنی، ساکھ کا آہوں، تماشا، گہے لالا زار۔ یہ سب کس کے ہے؟ تو ایران میں اجنبی جو مجموعہ کلام اس میں شامل نظمیں ہیں۔ اسی طریقے ساتھ اگر لا انسان جو پوچھا جاتا ہے اکثر،
اس میں جو شامل نظمیں ہیں: حسن کوزہ گر، مہمان، ایک دی روز، ایک اور شہر، ابو لہب کی شادی، دل فریب، سحر انور، دپیر، ہاں دپیرو دل ہے، یہ دیکھو واو چھوٹ گیا یہاں پہ، اسرافیل کی موت، میرے بھی ہیں کچھ خواب، آئینہ حسن و آئینہ حس و خبر، آئینہ حس و خبر سے آ رہی یہاں ہے، تعارف، اندھا، جنگل زندگی کے ایک پیرازن، بوائے اومزاد، گداگر، اظہار رسائی، اور آرزو راہبر ہے، تمنا کے تار، زندگی سے ڈرتے ہو ہم کہے عشاق نہیں، اور اے غزال شب، آنکھیں کالے غم کی، وہ حرف تمنا جسے ہمسائے وصل مانا، بے پرو مال، ہماتن نشات وصال ہم، گرد باد افسانہ شہر، میر ہو مرزا ہو یا میراجی ہو، مسکراہٹیں زمانہ خدا ہے، ٹھیک ہے، مہری کی تابستانوں میں میری مور جاں ہے، بے صدا صبح پلٹ آئی، تسلسل کے صحرا میں دیوار پیرو وہی کشف، ذات کی آرزو نئی تمثیل، سالگرہ کی رات، اس پیڑ پر ہے موم کا سایہ، یہ موم نہیں ہے بوم ہے، بوم بولتے ہیں الو کو، اس پیڑ پر ہے بوم کا سایہ یعنی الو کا سایہ، رات خیالوں میں گم۔ یہ سبھی جو ہے کہ میں تو خیر پڑھنا نہیں چاہیے، میں بول لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے تاکہ آپ کے دماغ میں، کیا پتا کچھ لوگ ہے اتنے بھی انٹیلیجنس جو ایک بار دیکھ لے تو پھر دماغ میں بیٹھ جائے، تو میں دکھا بھی دیتا ہوں، لیکن درخواست وہی ہے، کہنا وہی ہے کہ آپ نوٹ سے لے لیں اور تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو سکے، دل میں کوئی خلش کوئی تمنا نہ رہے۔ تو ساتھیو جڑیے ہم سے، یہ گیا گمان کا ممکن میں جو ایک نظم مجموعہ ہے اس میں تمام نظمیں شامل ہیں، تو یہ سبھی چیزیں کچھ نظم جو ہے ساتھیو یہاں پہ دیگر ہے، جیسے کہ تصوف، پرانی پود تک میں مسیز سالہ مانگا، اے وطن اے جاں، ایک زمزمے کا ہاتھ، آگ اور ہنا، برزخ، بیچارگی، رات افرید صحیح۔ تو یہ سبھی کیا ہے ساتھی، پڑھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ چلیے خیر کوئی بات نہیں، بہت اچھا کیا آپ لوگ آئے، آنے سے پہلے آ گئے ہیں، تیاری آپ کی اچھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، میں امید کرتا ہوں جو لوگ کل جو ہے کہ 15 کا، کل کیا تھا 15، تو 15 کا جن لوگوں کا کیا بولتے ہیں سیٹ کا ایگزام تھا، کس کا سیٹ کا، ٹی اے سیٹ کا جن لوگوں کا ایگزام تھا، کیسا گیا آپ لوگوں کا ایگزام؟ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی نہیں بتائے تو آپ جو اپنا ایک فیڈ بیک بھی ہمیں دیجئے کہ ایگزام کیسا گیا، تیاری کے متعلق کیا آپ کی رائے ہے اور کیا آپ کے کہنے ہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو آپ پڑھے ہیں یہاں سے اور آپ کو آ گیا ہو، تو اس طریقے سے آپ کرتے رہیں تاکہ جو ہے کہ آپ کی بات آنے والے ساتھیوں کے لیے ایک موٹیویٹ کرے اور ہماری انرجی کو برقرار رکھے۔ کیسا یہ کلاس کیسی رہی، آپ کیسے رہے، پہلے کے امتحانات کیسے رہے، بتانے کی زحمت کریں، کوئی پریشانی کوئی دقت ہو ساتھیوں ہم سے رابطہ کریں، یہ نمبر 9045978747 آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کو پہلا حق بنتا ہے، یہ کلاس یہیں پوری ہوتی ہے، اور وہی بات کہ آپ ٹیلی گرام چینل سے ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں اور یوٹیوب چینل سے ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں تاکہ آپ کو پورا فائدہ مل سکے۔ ساتھیو منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے۔ کیا کہنا ہے آپ کے، تیاری آپ کی اچھی ہو رہی ہے؟ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔